اللہ کے فضل سے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3، الرحمن الرحیم۔ الرحمن جو بہت ہی مہربان، الرحیم جو بہت ہی پیار کرنے والا۔ اب دیکھیں کہ الرحمن اور الرحیم اگرچہ دونوں لیکن یہ رحمت کے دو مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں۔ رحمت کا ایک پہلو رحمت عامہ سے تعلق رکھتا ہے، جس کو الرحمن سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ رحمت جو محض صفت عارضہ ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے لیے یکساں کام کرتی ہے۔ الرحیم کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جس میں نہ صرف رحمت ہے بلکہ جس سے ہمیشہ رحمت کا ظہور ہوتا ہی رہتا ہے، اور ہر آن اور ہر لمحہ تمام کائنات خلقت اسی سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اگر اس کی صفت الرحیم نہ ہوتی تو ہر ظالم اور زیادتی کرنے والا ظلم اور زیادتی کرتے ہی اسی کے نتیجے سے دوچار ہو جاتا اور اس کو معافی طلب کرنے کی بھی مہلت نہ ملتی۔ رحمت کو دو الگ الگ صفتوں سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کریم خدا کا جو نقشہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، اس میں سب سے نمایاں اور سب صفات پر چھائی ہوئی صفت رحمت ہی کی صفت ہے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ بس ضروری ہوا کہ خصوصیت کے ساتھ اس کی صفتی اور فعلی دونوں حیثیتیں واضح کر دی جائیں۔ اس میں رحمت ہے کیونکہ وہ الرحمن ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اس سے رحمت کا ظہور بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ الرحیم بھی ہے۔ الرحمن الرحیم کی رحمت کا شاہکار خود بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت کو مٹانے اور محبت کو پھیلانے کا کام کیا۔ محبت اور رحمت لازم و ملزوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں سے نفرت سکھائی، لیکن گناہ گاروں سے محبت کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے دور رہنے اور مریض کے قریب ہونے کا حکم دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسمہ رحمت و رافت اور شفقت قرار پائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چونکہ تمثیل سے سمجھنا اور سمجھانا آسان ہوتا ہے اور بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس لیے آپ الرحمن اور الرحیم کو زیر نظر تمثیل سے سمجھیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں الرحمن کو تمثیل سے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم سے حکایت ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کہا، میں ایک شخص کے پاس مہمان تھا، میزبان نے کھانا تیار کرایا اور میرے سامنے لے کر رکھا تاکہ میں میزبان کے ساتھ مل کر کھاؤں۔ جب ہم کھانے لگے تو اچانک ایک کوہ آیا اور جو روٹیاں رکھی تھیں ان میں سے ایک روٹی اٹھا کر اڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا کہ کوہ اور پوری روٹی اٹھا کے اڑتا بنا۔ میں فوراً اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ کہتے ہیں کچھ فاصلے پر ایک ٹیلا تھا اور ٹیلے کے پیچھے ایک شخص کو مشکیں باندھ کر ڈال دیا گیا تھا جو زندہ تھا لیکن اپنی جگہ سے ہل جل نہیں سکتا تھا۔
कौवे ने वो रोटी इस शख्स के बिल्कुल करीब जाकर गिरा दी, या कौवे की चोंच से वो रोटी ऐन इस शख्स के सर के करीब गई। अब इस शख्स को रोटी खा लेने में कोई शय मानिया ना थी। ये इस रहमान की रहमानियत का तकाजा था जो इस तरह पूरा हुआ। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। और रहमान की रहमानियत को समझने के लिए ज़रा गौर करें कि इमाम राज़ी अपनी तफसीर कबीर में इस तरह लिखते हैं, एक हकायत कहते हैं, कौवे के बच्चे की हकायत को मुशाहिदा करके हम देख सकते हैं कि जब वो अंडे के छिलके से निकलता है तो बगैर बालों के एक गोश्त के टुकड़े की तरह होता है। चूंकि मुतहरिक होता है, जब कौवा इसको देखता है तो इसे छोड़कर फरार हो जाता है। वो काएं काएं करता है, हर आने जाने वाले को ठूंगे लगाता है और इज़्दरारी हालत में उड़ता फिरता है, लेकिन आशियाना के करीब तक नहीं जाता और ना ही वो अपने बच्चे की परवरिश करता है। चूंकि बच्चा एक गोश्त के लोथड़े की तरह होता है, लिहाजा इसी शुबा में मच्छर इधर उधर से उड़ उड़कर इस पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वही मच्छर इस कौवे के बच्चे की ग़िज़ा बनते हैं और ये हाल कई दिनों तक जारी रहती है। कुछ दिनों के बाद बच्चे के पर और बाल उगाते हैं और वो स्याह रंग का हो जाता है और इसके साथ ही इसमें कुछ ताकत भी आ जाती है, यहाँ तक कि इसके बालों में गोश्त पूरा छुप जाता है। इस वक्त इसके माँ बाप इसके पास आते हैं और इसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त संभाल लेते हैं। इससे समझा जा सकता है कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल आम है और इसकी सिफ़त अर्रहमान इस वक्त भी सहारा बन जाती है जब कोई और सहारा नज़र नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अर्रहीम। अब देखिए, अर्रहीम भी अल्लाह ताला की ख़ास सिफ़त है। इसकी वुसअत को समझाने के लिए इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में एक हदीस बयान की है, जिससे अल्लाह ताला की इस सिफ़त पर रोशनी पड़ती है। वो मैं आपके सामने रखती हूँ। हदीस में है कि एक करीबुल मर्ग नौजवान की ज़ुबान कलमा शहादत अदा करने से रुक गई। नज़ा की हालत तारी थी, लेकिन जान निकलती भी नहीं थी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इसके करीब ही खड़े हो गए। मरने वाले पर कलमा शहादत लुटाया। वो मुतहरिक को मुज़तरिब होता, मगर इसकी ज़बान काम ना करती। अदायगी अल्फाज बिल्कुल रुक गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या ये नमाज पढ़ता था? मुस्बत जवाब पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या रोज़ा रखता था? इसका जवाब भी हाँ में दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफसार किया कि ज़ुकात अदा करता था? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वालिदैन का नाफरमान था? लोगों ने इसका जवाब भी हाँ में दिया कि इसकी वालदा अब भी मौजूद है, लेकिन वो यहाँ आना पसंद नहीं करती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ इसकी वालदा को ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इसकी वालदा लाई गई। वो एक बूढ़ी खातून थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये तेरा बेटा है? बुढ़िया ने कहा, हाँ मेरा बेटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका गुनाह माफ़ कर दे। इसने कहा, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। इसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी आंख फूट गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की बात सुनकर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को हुक्म दिया कि लकड़ियाँ लाओ और आग जलाओ।
खातून ने पूछा कि आग किस लिए जलाई जा रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए ताकि तेरे इस नाफरमान बेटे को तेरी आंखों के सामने जलाया जाए और इसने तेरे साथ जो ज्यादती की है इसका बदला पाए। खातून ने फौरन बेटे को मुखातिब किया और कहने लगी, बेटा मैंने तुझे माफ किया। क्या मैंने तुझे 9 महीने आग के लिए उठाया था? क्या मैंने 2 साल तक तुझे दूध आग के लिए पिलाया था? मां का माफ करना था कि बेटे की जुबान पर कलमा तौहीद जारी हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की इस सिफ्त अर्रहीम ने वालदा की इतनी सख्त नफरत को फिर मां की ममता में बदल दिया और वालदा की इस सख्ती को जो इसने बेटे की नाफरमानी की वजह से इख्तियार की थी, रहमत में तब्दील कर दिया और बेटे को भी इसकी गलती का एहसास दिला दिया और मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा दी। गोया रब्बुल आलमीन के बाद अर्रहमान अर्रहीम का दोबारा ज़िक्र करके इस तरफ इशारा फरमाया है कि निज़ाम रबूबियत के बाद तमाम निज़ाम आलम अल्लाह ताला की सिफ्त रहम का ज़हूर है। क्यों? गोया ये तमाम कारोबार आलम और ये सारा कायनात, ये सारी कायनात सिर्फ इसलिए ही है ताकि इससे हमें फ़ायदा पहुँचे और हमारी ज़रूरतें पूरी हों। इस तरह के और मज़मून जो है इस टॉपिक पर कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे सूरतुल जासिया में है, वसख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअम मिन इन्ना फ़ी ज़ालिका लाआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और वही अल्लाह है जिसने आसमान की जुमला मखलूक और ज़मीन की सारी चीज़ों को अपने ख़ास फजल करम से तुम्हारे ताबे कर दिया और ये इनामात तुमको अता फरमाए हैं। नक्लो खर्द रखने वाले और गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए इनमें कुदरत इलाही की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। ना सिर्फ ज़मीन व आसमान के दरमियान खला, बल्कि ज़मीन के पेट में भी इसने अपनी रहमत व नेमत के बेशुमार ख़जाने अपनी मखलूक के लिए मख्फी कर रखे हैं, जो महज इसकी शफकत और मेहरबानी से ज़मीन की सतह पर नमूदार होते हैं और इसकी सारी मखलूक इनसे फ़ायदा उठाती है। ज़मीन की सतह फलों, फूलों, गल्ला तरकारियों, मेवों से माला माल है और पानी की शफाफ और शीरी चश्मे इसके पेट से उबलकर इसकी सतह पर बह रहे हैं और ज़मीन की गहराइयाँ सोने, चांदी और दीगर कीमती मादनियात से पुर हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह की और भी कुरान पाक में, कुरान मजीद में बहुत से इरशादात मौजूद हैं, जो एक मेरा दिल चाहता है कि आपके सामने और रख दूं। ये सूरह नहल है। वहुवल्लज़ी सख़रल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरियम व तस्तख़रिजू मिन्हु हिलियतन तलबसूनहा व तरल फुल्का मवाखिरा फ़ीही वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। और तुम्हारा परवरदिगार वो है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया, जिसमें अपने खाने के लिए मछली का तरोताज़ा गोश्त हासिल करते हो, इसकी तहों में से गौता जन मोती वगैरह निकाल लाते हो और जिससे तुम अपने जेवरात बनाते हो। और तुम कश्तियों को मुलाहजा करते हो कि वो समंदरों का सीना चीरती हुई फिरती हैं ताकि इनके ज़रिए बहरी तजारत से मुनाफा हासिल करो और इसका शुक्र अदा करो। अल्लाह अकबर। इन तमाम कुरान की आयात करीमा से पता चलता है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस जहान का ज़र्रा ज़र्रा पैदा करके पूरे निज़ाम आलम को अपने निज़ाम रबूबियत के तहत रखा हुआ है और इसका निज़ाम रबूबियत इसके रहम करम और इसकी रहमत व शफ़क़त के तहत चल रहा है। पूरे निज़ाम आलम का एक ज़र्रा लम्हा के लिए भी इसकी रहमत से बेनियाज नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जिस तरह ये खुशकी और तरी की सारी नेमतें आलम जिस्मानी की तरबियत और परवरिश के लिए पैदा फरमाई हैं, इसी तरह इसकी रहमत बेपाया ने आलम रूहानी की तरक्की और नशोनुमा के लिए भी इंतज़ाम फरमाया।
اور دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے عالم روحانی کی غذا کا بندوبست کیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باسط اور اپنے آخری پیغام قرآن مجید کی تعلیم کو خصوصیت سے اپنی رحمت کے ساتھ متعلق فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ سارے عالم پر رحم کریں۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت اور دنیا کی تمام رحمتوں اور شفقتوں سے بڑھ کر رحمت اور شفقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک طرف روح اور جسد کا تعلق باقی رکھنے کے لیے بے شمار مادی غذائیں مہیا کی، اور دوسری طرف روح کی نشو و نما کے لیے اعلیٰ درجے کی روحانی غذائیں یعنی نبوت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہیا فرما دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی جاؤں بس کہ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایماندار اللہ کے غضب و غصہ سے اور اس کے سخت عذاب سے پورا واقف ہوتا تو اس وقت اس کے دل سے جنت کی تمع ہٹ جاتی، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو کبھی نا امید نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔